امریکہ کے مسلسل 10ویں روز ایران پر حملے، چابہار، بندر عباس، سیرک، بو شہر اور قشم سمیت 10 شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں F-15 طیارے اور میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاس تاران انقلاب نے کہا بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر، پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم اور ریڈار تباہ کر دیے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر اور امریکی فوج کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا۔ احمد الجابر ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا تو ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا امریکی فوجیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دیں، امریکی فوج ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار ہے۔ پینٹاگون کے مطابق حالیہ ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں 96% ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ 28 فروری سے اب تک 14 فوجی ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باوجود مذاکرات جاری ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا ایران پر حملے صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہیں گے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے ایران کے خلاف کارروائی، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی، آبنہ ہرمز میں حملوں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں کی جا رہی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اسلام آباد میں پاکستان مانیمنٹ آمد، فیڈرل کانسٹیبلری کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سکندر مومنی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کر دی۔ سعودی عرب کی شدید مذمت، کہا حوثی ملیشیا نے یمن کو وسیع تر علاقائی تنازع میں گھسیٹ لیا ہے۔ باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف تمام حوثیوں کے اقدامات کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں کے اقدام کو سمندری قزاقی قرار دیا، کہا اپنے جہازوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطر نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی مذمت کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزاد جہاز رانی بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اقوام متحدہ کا حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق یہ ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ آبنہ ہرمز کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی معیشت پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید رکاوٹیں عالمی تجارت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، نارووال، وزیر آباد اور ڈسکہ میں جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محمد، ڈیرہ اسماعیل خان، میر پور اور کوٹ کے آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش۔ مردان میں ایک گھر کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ نوشہرہ میں جہانگیر سٹاپ اور فضل بارگین کے مقام پر سیلابی ریلی میں پھنسی گاڑیاں نکال لی گئیں۔ مانسہرہ میں شاہراہ کاغان پر لینڈ سلائیڈنگ، انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ مونسون بارشوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے تمام متاثرہ اضلاع میں نکاسی تیزی سے مکمل کر لی گئی۔ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ نے 15 اضلاع میں واسا کو 12 اقسام کی مشینری فراہم کر دی۔ یہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا واسا کا پروگرام ہے۔
पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। मानसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों और दरियाओं में हलचल। दरियाए चेनाब में कटाव, चिन्योट का मियांवाल गांव बुरी तरह मुतासिर। बिफरी मौजों ने मोजा डोम सैदा और वडसेडा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकामी। एनडीएमए ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। दरियाए चिनाब और जहलुम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जहलुम, गुजरावाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना था फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हों। ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। मरहलावार इंतखाबात करा रहे हैं ताकि माहौल पुरअमन रहे। आजाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पीपल्स पार्टी आज नकियाल कॉलेज ग्राउंड में जलसा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से हमआहंग किया गया है। मकसद पाकिस्तान में शवाहिद पर मबनी अदालती इस्लाहात को फरोग देना, इंसाफ तक रसाई और शफाफियत को मजबूत बनाना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, वजीर कानून और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। आजम नजीर तारर कहते हैं कमेटी ने हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। मुजव्वज़ा कमीशन की सरबराही के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जजों के नाम ज़ेर गौर हैं। कमीशन की तश्कील और कवायद जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजों की तैनाती के लिए 24 नामों पर गौर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए भी इजलास आज होगा। 20 उम्मीदवारों के नाम ज़ेर गौर आएंगे। NCCIA पंजाब ने 12 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारत खानों का डेटा हैक कर रहे थे। डायरेक्टर अली वसीम ने बताया मुल्जिमान ने सिफारत खानों के नंबर्स हैक करके अपने नंबर्स पर डाइवर्ट किए हुए थे। मुल्जिमान ने वारदातों के लिए मुख्तलिफ जबानों के माहिर अफराद भी रखे हुए थे। सिफारत खानों की जाली वेबसाइट्स भी बना रखी थी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लंदन में भारतीय नौजवानों का इंडियन हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। तलबा ने कहा वो भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए निकले हैं। भारतीय हुकूमत फौरी तलबा के मुतालबात मंजूर करे। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system. तारीख में भारतीय नौजवानों का कोई बदतरीन दुश्मन वजीर आजम है तो वो मोदी है। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं लाखों तलबा के पेपर लीक हुए मगर एक भी शख्स को सजा नहीं सुनाई गई। अगर किसी को सजा मिली तो वो सख्त मेहनत करने वाले नौजवान हैं जिन्हें वजीर तालीम का इस्तीफा तलब करने की भी इजाजत नहीं। नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पेपर लीक करने वाले मुजरिम आजाद घूम रहे हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में ताउन कर रहे हैं। सेहत, तालीम और दीगर शोबों के तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी इक़दाम कर रहे हैं। 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम का मनसूबा सर फहरिस्त है। गिलगित में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, हमें पता है, तो इम्पोर्ट का कोई नहीं। जो इस मुल्क में गंदम लोगों ने होड़ की हुई है उस पर काम किया जाए ताकि वो होर्डर से गंदम निकाली जाए। मुल्क में गंदम की कमी नहीं, कुछ अफराद ने गंदम जखीरा कर रखी है। दरामद के बजाय जखीरा की गई गंदम मार्केट में लाने पर तवज्जो देना होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। CCI में तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक दरख्वास्त दी हुई है। हर सूबा वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पानी देने का पाबंद है। ईसा के तरीक़ाकार पर मुतादिद बार एतराज़ात उठाए। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी और मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का जायजा लेगी। टास्क फोर्स बनाकर सिंध का मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। आगरा ने पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपए 71 पैसे बढ़कर 360 रुपए 6 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपए 93 पैसे महंगा, नई कीमत 282 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगस्त को पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शाहराहों सब पर हम धरना करेंगे, बंद करेंगे। नाजायज़ तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है यह ख़त्म किया जाए और लेवी को ख़त्म किया जाए। महंगाई है तो हर कोई कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो गवर्नेंस कहाँ होती है? ये जो महंगाई है ये तो खा जाएगी पूरी कौम को। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, लेवी और नाजायज टैक्स का जंग से क्या ताल्लुक? जालिमाना टैक्स ना हो तो फी लीटर पेट्रोल 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। रोजाना आवाम दुश्मनी की जा रही है। पूरी कौम से झूठ बोलकर आवाम को लूटा जा रहा है। 7 अगस्त को पूरे मुल्क की सड़कों को बंद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा, यह इकदाम अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया। नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।